Hello and welcome to the Math City. Before going to the today class, let me make a small announcement. This channel is helpful for those students who are pursuing class 11 and 12 and those students who are pursuing undergraduation, that is in mathematics honors. Dears, I am going to upload all topics that are in your syllabus, whether class 11, 12 and undergraduations. That's why I am requesting you to please subscribe the channel and share the video. But let me know what's your high demand right now. Please comment on the comment section. So without further ado, let me proceed to the today class. Today I have chosen the chapter that is concavity and inflation point, and the topic of the day includes its introduction. Then we will see what are increasing function and what are decreasing function with examples, and then we will see first derivative test for an extremum. Extremum means maximum and minimum, that are we say relatively maximum and relatively minimum. Then we will see what are concavity and inflation points with we solve second derivative test and we'll determine the interval for concavity, and then we'll see the procedure how we'll find the inflation point, and then lastly we'll see the second derivative test. So these are the topics I have chosen for the today video. So without delay, let's get started. In this chapter, we shall use the second derivative to determine the type of graph the given function f has, and we shall assume the function f is twice differentiable in its domain. So with this, let's move to the first topic of the day, that is increasing function. काहाकू आमे increasing function कहिबा ना, let me show with a diagram. This is our coordinate system. Here it is our x-axis and this is our y-axis, and let's say this is a function that is f of x, and let me choose 2 points. Let's say this is our x1 and this is our x2. Here x1 is less than x2, that means x is smaller, that means x1 is smaller than x2, and at x1 the function gives the value, that is at x1 this is f of x1, and x2 the function gives the value, that is f of x2. आम लिखिपर ये that is x1 and f of x1. Similarly, this is let's say point P, and let's say this is point Q, where at x that is x2 and y it is f of x2. Dears, when you move from x1 to x2, when you move from x1 to x2, the function also rises. Obviously, we can clearly see when you move from this point P to point Q, the function rises. That's why this function we call the increasing function. That means when you move from x1 to x2, this implies f of x1 is less than f of x2. That's why it is increasing function. It is easy to see that y equal to f of x, that is the function, tends to go off as it goes along. That means when we move from x-axis, the function also rises in y-axis. That means moving from point P to point Q. That's why it is increasing. Moving on to the next topic, that is decreasing function. Similarly, to know what are decreasing function, let me show with an example with this diagram. Let's say this is our x-axis and let's say this is our y-axis, and let's say this is our function, that is f of x. Here similarly, let's say x1 is less than x2 and we have to move from x1 to x2. That's this is our, let's say, point P and x, this is our point x1, and y it is f of x1. Similarly at Q point, this gives at x it is x2, and at y-axis this gives f of x2. Now when you move from x1 to x2, when you move from x1 to x2, the function value decreases. The function value decreases.
when you move, let me repeat, when you move from x1 to x2, the function value also decreases. That's why आम ये लिखिपर f of x1 that is f of x1 is greater than f of x2. Clearly हम देखु कि f of x1 is greater than f of x2. When you move from x1 to x2, the function value decreases and we can write f of x1 is greater than f of x2. That's why we call this function as a decreasing function. When the function fall down, we call them decreasing function. I hope this is clear. So आमे clearly देखिलु कि क्या को आमे increasing और क्या को decreasing function कहू. For increasing function, the graph of the function is rises, whereas for decreasing function, the graph is fall down. जो फंक्शन टा राइजेस करे ताको आमे कहबा इंक्रीजिंग, आउ जो फंक्शन टा डिक्रीज करे ग्राफटा ताको कहबा आमे डिक्रीजिंग फंक्शन बोली. With this a clear definition, let गोटे आमे फंक्शन कंसीडर कलु f which is defined on the interval I. आउ I रे आमे लेट से दुईटी पॉइंट कंसीडर करिछु, लेट से x1 आउ x2. आउ ए इंटरवल रे देखिबा कि फंक्शन टा इंक्रीज करूछि ना डिक्रीज करूछि. सो फॉर इंक्रीजिंग आमे लिखि परिबा x1 is less than x2. This implies जदि f of x1 is less than equal to f of x2 हुए, then it is called increasing function. Similarly, when x1 is less than x2 and this implies f of x1 is greater than equal to f of x2, then it is called decreasing function. Dears, here for strictly increasing on the interval I, आमे कौन कहि परिबा ना f of x1 is less than f of x2. Whenever x1 is less than x2, then it is strictly increasing. Clearly आमे differentiate करि परिबा ना, here it is less than equal to and here it is less than only. So this type of function we call the strictly increasing. Similarly for decreasing f of x1 is greater than f of x2. Whenever x1 is less than x2, then it is called strictly decreasing. With this diagram we know which function we call the increasing and which function we call the decreasing function. So proceed to the next topic. With this, let me give an example. आम गोटे फंक्शन दिखाई, that is f of x equal to 2x plus 5. आउ ए फंक्शन टा डिक्रीजिंग फंक्शन ना इंक्रीजिंग फंक्शन आमको चेक करिवार अछि. सो फॉर दैट आमे दुईटी पॉइंट नबा, लेट x1 and x2 be 2 points which the function is defined. आमे दुईटी पॉइंट कंसीडर करू x1 and x2 जहाँ द्वारा कि फंक्शन टा डिफाइन होछि. सो f of x1 केते आसीबो, हियर f of x is 2x plus 5. so at x1 हम लिखि परिबा at x1 this gives 2x1 plus 5 and at x2 this gives 2x2 plus 5. So we know the condition of increasing function, that is आमे प्रीवियस स्लाइड रे पढ़ी दिलो, that is when x1 is less than x2, जदि x1 टा लेस देन हुए x2 रो आउ ए बुलिया कंडीशन जदि सैटिस्फाई करे देन आमे कहबा एको इंक्रीजिंग फंक्शन. सो सिमिलरली यू कैन चेक हियर. सो हियर x1 is less than x2, देन आमे लिखि परिबा मल्टीप्लाई कर द बोथ साइड को 2, that is 2x1 plus 2x2. नाउ एडिंग विथ 5 हम पाई जिबा 2x1 plus 5 and 2x2 plus 5. केमते हम करलो एटाको ना, प्रथम थिला x1 is less than x2, आमे मल्टीप्लाई कर देलु बोथ साइड को विथ सेम नंबर, that is 2. so this also the inequality holds. now adding with 5 both side, this give this type, that is our f of x1 is less than f of x2. this is our f of x2. so आमे लिखि परिबा hence when x1 is less than x2, this implies f of x1 is less than f of x2. that's why it is increasing function. Similarly for decreasing आमे गोटे एग्जांपल कंसीडर करू, that is आमे गोटे फंक्शन दिया है f of x equal to minus 2x plus 5. now ए फंक्शन टा
इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग फंक्शन आम से दुईटी पॉइंट कंसीडर करवा लेट से x1 एंड x2 आउ कंडीशन जानिछु कि आम फॉर डिक्रीजिंग द कंडीशन इज व्हेन x1 is less than x2 then f of x1 is greater than equal to f of x2 or f of x1 is greater than f of x2 हुए then it is decreasing function. So आम ये लिखि पारिबा x1 is less than x2 then multiply with -1 both side आम ये कौन पाई ना -x1 is greater than x2 -x2 कहीं ना लेट मी चेक जदि आम दुईटी नंबर नेला 2 is less than 5 ऑब्वियसली जदि आम माइनसटा मल्टीप्लाई करदेबा बोथ साइड को ताले एटा हो -2 -5 आउ ए इनइक्वालिटीटा होल्ड करुची ना एटी होल्ड करूना केमती होल्ड करुची एटा ना ग्रेटर देन हिसाब रे सो इनइक्वालिटीटा चेंज हो जेते आम नेगेटिवटा मल्टीप्लाई करूँ सो आम क्लीयरली लिखिपर -x1 is greater than -x2 now multiply with same number both side that is 2 that is it has your 2 it has your 2 so भल भाव टी लिखा -2x1 is greater than -2x2 नाउ बोथ साइड को जब आम 5 रे जब ऐड करदेबा तो किसी फरक पड़ोनी ये सो आम एडिंग 5 बोथ साइड दिस गिव -2x1 is greater than +5 -2x2 +5 this is our f of x1 and greater than and this is our f of x2 केते बेले हला ना जेते बेले x1 is less than x2 this implies f of x1 is greater than f of x2 या कार कंडीशन ना डिक्रीजिंग फंक्शन रो कंडीशन दैट्स व्हाई यू कॉल दिस फंक्शन एज ए डिक्रीजिंग फंक्शन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम दैट इज मोनोटोन फंक्शन थ्योरम यही थ्योरमटा बहुत इंपोर्टेंट आम ए चेक करवा ना डेरिवेटिव यूज करके फंक्शनटा इनक्रीजिंग हेबो ना डिक्रीजिंग हेबो से भी आम कहीपर यूजिंग डेरिवेटिव सो यही थ्योरमटा कहे कि जदि f इज डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल लेट से i दैट इज पॉइंट कैरीज a to b देन जदि फर्स्ट डेरिवेटिव जदि पॉजिटिव आसे ऑन द इंटरवल i देन आम कहवा ना से फंक्शनटा स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग हेबो सही इंटरवल रे लेट मी रिपीट जदि फंक्शनटा दिखाई आउ डिफाइन होती से फंक्शनटा लेट से आई इंटरवल रे आउ आई इंटरवल रे पॉइंट अच्छी ए आउ बी आउ यही फंक्शनटा को आम इनक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग कहवा यूजिंग डेरिवेटिव दैट इज व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आसे जदि डेरिवेटिवटा जदि पॉजिटिव आसे इंटरवल आई रे देन आम यहाँ कहवा ना स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग फंक्शन बोले सही इंटरवल सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑन दैट इंटरवल i देन इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जदि डेरिवेटिवटा जदि आमर नेगेटिव आसे ऑन इंटरवल i रे देन इटा को हम कहवा ना डिक्रीजिंग फंक्शन बोले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोले सो स्टेटमेंटा बुझा पड़ी थ्योरम रो नाउ वी प्रूव दैम या आम प्रूव करवा केंती प्रूव करवा ना गिवन आमको दि जाइए ना f गोटे डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन इंटरवल ए वी ओपन इंटरवल ए वी देन आमको प्रूव करवार अच्छी ना एफ डैश एक्सटा जिते बेले पॉजिटिव आसे इट इज इनक्रीजिंग हम एंड एफ डैश एक्सटा जिते बेले नेगेटिव आसे इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन ये सब आमको प्रूव करवार अच्छी गिवन दिखाई एफ गोटे डिफरेंशिएबल फंक्शन आमको प्रूव करवार अच्छी ये भाया सो लेट मी प्रूफ डियर्स टू प्रूव दिस थ्योरम आम किपरि करबा प्रूफ ना लेट से आम दुईटी पॉइंट कंसीडर कलु लेट से x1 एंड x2 आर 2 पॉइंट्स ऑन इंटरवल i लेट से आम दुईटी पॉइंट कंसीडर कलु x1 एंड x2 ऑन द इंटरवल i आउ आमको गिवन दि जाइए ना f इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल i that means at x1 and x2 जदि फंक्शनटा जदि डिफरेंशिएबल हुए दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस आल्सो सो f इज आम लिखिपर ना कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल
x1 x2 आउ आम गोटे जाचु बाय मीन वैल्यू थ्योरम आमको मीन वैल्यू थ्योरम कहे जदि एफटा जदि डिफरेंशिएबल हम एनी इंटरवल लेट से ए एंड बी आउ एफटा जदि कंटिन्यूअस हुए क्लोज इंटरवल ए बी भितर देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन बिटवीन देम दैट इज एट ए एंड बी सो आम ये लिखि पारिबा सी इज बिटवीन ए एंड बी सच दैट कौन हुए ना एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए हो जाए। दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। जदि एफटा जदि डिफरेंशिएबल हुए ओपन इंटरवल रे आउ एफटा जदि कंटिन्यूअस हुए क्लोज इंटरवल ए बी भितर देन देयर एग्जिस्ट आम गोटे पॉइंट मिलिबो सेठी आउ सच दैट ये कंडीशन को से होल्ड करे। सो यही थ्योरमटा को आम यूज करवा यही जगह कहीं आमको गिवन दिया एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल x1 एंड x2 दैट्स वाई जदि डिफरेंशिएबल हुए ता अर्थ से कंटिन्यूअस भी हेबो ना क्लोज इंटरवल x1 एंड x2 भितर। सो दैट्स वाई आम लिखि पारिबा देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट लेट्स से C in between x1 and x2 because of the mean value theorem. So आम लिखि पारिबा x1 is less than C less than x2. This implies f dash C equal to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1. Now this implies this is what f of x2 minus f of x1 and which is equal to यह आम डिवाइड किए अच्छे इे गले से हो ना एफ डैश सी इंटू x2 माइनस x1। नाउ आम ये देखिपर कि लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ एफ डैश एक्स टा जदि पॉजिटिव हुए फॉर ऑल एक्स व्हिच इज बिटवीन इंटरवल ए एंड बी देन एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 हम कहीं x1 आउ x2 मध्य जदि फंक्शनटा जदि पॉजिटिव हुए ता डेरिवेटिव ता अर्थ सी रे मध्य पॉजिटिव हम कहीं सी इज द नंबर इन बिटवीन x1 एंड x2 दैट्स वाई एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 हम केतेबेले ना जितेबेले एफ डैश एक्सटा पॉजिटिव हम। ऑल्सो आम कहीपर ना x2 इज ग्रेटर देन x1 बिकॉज x2 minus x1 is greater than 0. So that means with this result आम लिखिपर from equation 1 आम कौन लिखिपर ना f of x2 minus f of x1 is देखुचु कि f dash c greater than 0 x2 minus x1 is greater than 0 that means x2 minus x1 f of x1 is always greater than 0 कहीं या सब बेले पॉजिटिव ही आसीबो दैट्स वाई आम लिखिपर एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0 हैंस दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2 केते रहला ना व्हेन x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। सो यह कहार कंडीशन ना इट इज द कंडीशन ऑफ increasing function. So hence it is increasing on interval a and b. I hope this is clear. ये आम प्रूव कलु पार्ट 1 जमीती आम फास्ट पॉइंटा प्रूव कलु ठीक से हीपरी सेकेंड पॉइंट आम प्रूव कर केमिति आम फास्ट पॉइंट प्रूव कलु ना एथिपाई आम दुईटी पॉइंट कंसीडर कलु गोटे है x1 आउ गोटे पॉइंट है x2 इन द इंटरवल आई आउ गिवन दिया आमको ना फंक्शनटा आमर ना डिफरेंशिएबल दैट इज एफ इज डिफरेंशिएबल आमर गिवन दिया। सो आम लिखिपारा कि ये एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल आई दैट्स मीन्स आम जाचु जब फंक्शनटा जब डिफरेंशिएबल हुए दैट्स मीन्स इट इज कंटिन्यूअस। सो आम लिखिपर एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल आई आउ आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी कि गोटे मीन वैल्यू थ्योरम आउ सेटा कहे कि जदि फंक्शनटा जदि डिफरेंशिएबल हुए ओपन इंटरवल रे
आउ फंक्शनटा जदि कंटिन्यूअस हुए क्लोज इंटरवल एबी मध्य देन देयर एक्जिस्ट आम गोटे पॉइंट मिल सी इन बिटवीन द इंटरवल सच दैट ए बिला कंडीशन होल्ड करे। सो यही रिजल्टा को आम ये यूज कलु आउ पाइलु कि एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2 व्हेन x1 इज लेस देन x2 आउ देखिलु कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन रो कंडीशन दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 दैट इज जिते बेले आमर एफ डैश एक्सटा पॉजिटिव है से देखिलु कि फंक्शनटा इंक्रीजिंग करुची। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क टू प्रूव द पॉइंट सेकेंड दैट इज जिते बेले एफ डबल डैश जिते बेले एफ डैश एक्सटा नेगेटिव हुए इटा डिक्रीज करिवो। सो विथ दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रिटिकल पॉइंट आमे काहाको कहिबा। क्रिटिकल पॉइंट आमे काहाको कहिबा प्रीवियसली आमे पढ़िथिलो ना जो फंक्शनटा फास्ट डेरिवेटिव रे पॉजिटिव आसे ताहाको कहू आमे इंक्रीजिंग फंक्शन आउ जो फंक्शनटा फास्ट डेरिवेटिव रे नेगेटिव आसे ताहाको कहू आमे डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल आई ए सब आमे पढ़िछु प्रीवियस स्लाइड रे। एबे आमे पढ़िबा क्रिटिकल पॉइंट आमे काहाको कहिबा। सो क्रिटिकल पॉइंट गोटे हला पॉइंट एमिति गोटे पॉइंट जो जगह कि एफ डैश एक्सटा 0 आसे आउ क्रिटिकल पॉइंट हला गोटे पॉइंट जो जगह कि एफ डैश एक्सटा डियर्स क्रिटिकल पॉइंट अर्थ कौन ता आमे बुझीबा। प्रीवियसली आम पढ़िथिलु ना एफ डैश एक्सटा जितेले पॉजिटिव आसे ताहाको कहू आमे इंक्रीजिंग फंक्शन और जितेले एफ डैश एक्सटा जितेले नेगेटिव आसे ताहाको कहू आमे डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल आई ए सब आमे प्रीवियस स्लाइड रे पढ़ी सारिछु। नाउ वी विल सी द क्रिटिकल पॉइंट आमे काहाको कहिबा। सो द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग on any interval we have to find the number where the function f dash is 0 and does not exist। नहीं गांधी भी सिंपल वर्ड हो जाओ नहीं। डियर्स क्रिटिकल पॉइंट अर्थ कौन ते हमें डियर्स आमे एबे पढ़िबा ना क्रिटिकल पॉइंट आमे काहाको कहिबा। प्रीवियसली आमे पढ़िथिलो ना जितेबेले एफ डैश एक्सटा जितेबेले ग्रेटर देन 0 आसे ताहाको आमे इंक्रीजिंग आ जितेले एफ डैश एक्सटा जितेले नेगेटिव आसे ताहाको आमे डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई रे। सो क्रिटिकल पॉइंट हला गोटे पॉइंट जो जगह कि एफ डैश एक्स रो वैल्यू 0 आसीबो आउ एही जगह रे जितेले आमे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करबा ए जगह हमको एक्स रो वैल्यू गुडाको मिली जिवो आउ एही पॉइंट को आमे कहबा क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट विथ दिस आमको लिखाई ये द क्रिटिकल पॉइंट्स डिवाइड्स एक्स एक्सिस इनटू इंटरवल्स आउ यही जो क्रिटिकल पॉइंट अच्छी ता एक्स एक्सिस को डिवाइड करिवो इंटरवल्स रे आउ यही इंटरवल्स रे आमे टेस्ट करबा तार साइन केते बेले से नेगेटिव होची आउ के इंटरवल रे से पॉजिटिव होची ता आमे चेक करबा। जेते बेले आमे क्रिटिकल पॉइंट चूज कलु सेते बेले जदि सही पॉइंट रे जदि लेट से दिस पॉइंट्स आर सी जदि सही पॉइंट रे जदि से जदि नेगेटिव आसे से जदि नेगेटिव आसे ऑन द इंटरवल देन ता को कहबा हमें डिक्रीजिंग और जहाँ जदि पॉजिटिव आसे देन आमे ताको कहबा इंक्रीजिंग। लेट मी रिपीट अगेन क्रिटिकल पॉइंट है गोटे पॉइंट जो जगह कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हम और नॉट एक्जिस्ट करिवो आ से जगह आमे एक्स रो वैल्यू गुड़ाक बाहर करवा से गोटे आसू दुईटा आसू तीन आसू ना जितेटा आसू। सो लेट्स आमे गोटे पॉइंट नेलु से पॉइंट है सी आउ यही पॉइंट रे से कौन करे ना एक्स रो एक्सिस को से डिवाइड करे इंटरवल्स रे। लेट्स से वन इंटरवल इज फ्रॉम सी टू लेफ्ट साइड एंड वन इंटरवल इज राइट ऑफ द सी आउ जो जगह रे जदि सी रो एफ डैश एट सी जदि पॉजिटिव आसे ता कहबा हमें इंक्रीजिंग आउ एट सी जदि नेगेटिव आसे ता कहबा हमें डिक्रीजिंग। लेट से ए जगह जदि एफ डैश सी रे जदि सेटा जदि पॉजिटिव आसे तो दिस साइड हमें कहबा इंक्रीजिंग बोले
आउ जदि ए साइड जदि नेगेटिव आसे देन इट इज आम कहवा डिक्रीजिंग बोले। आई होप दिस इज क्लियर। आम गोटे एग्जांपल कंसीडर करवा कही कि क्वेश्चन रे फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आमको फंक्शन दिखाई एफ ऑफ एक्स आउ एफ ऑफ एक्सटा इंक्रीजिंग करिवो ना डिक्रीजिंग करिवो कौ जगह इंक्रीजिंग करिवो कौ जगह डिक्रीज करिवो तार इंटरवल आमको बाहर करिवार अछि। सो आम जानिछु क्रिटिकल पॉइंट जगह बाहर करिवा ना क्रिटिकल पॉइंट केंति बाहर करू आमे ना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करिवा और नॉट एक्जिस्ट पुट करिवा से जगह आमको वैल्यू मिल जिवो एक्स रो वैल्यू गुडाक आ ता कहबा आमे क्रिटिकल पॉइंट्स आउ ए क्रिटिकल पॉइंट्स रे आमे फिर चेंज करिवा तार साइन को इंटरवल रे पॉजिटिव आसुची को इंटरवल रे नेगेटिव आसुची जो इंटरवल रे पॉजिटिव आसे ता कहबा आमे इंक्रीजिंग जो इंटरवल रे नेगेटिव आसे ता कहबा आमे डिक्रीजिंग। सो आमको गिवन दिया जाइछि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एफ डैश एक्स केते आसी जिवो एठी ना आम जानू गोटे डेरिवेटिव ऑफ u बाय v इक्वल टू केते हुए ना डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v स्क्वायर ए रिजल्ट आम यूज करवा कहीं ये u बाय v फॉर्मेट अच्छी। सो ये आसीज डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज लेट्स आम या फास्ट फंक्शन u कंसीडर कलु या आम v फंक्शन कंसीडर कलु। सो डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट आम जानी डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज केते हुए ना n x टू द पावर n माइनस 1 आसे। सो डेरिवेटिव यार केते अछि x टू द पावर 1 अछि। सो दैट्स व्हाई 1 x टू द पावर 0 दैट इज 1 आसी जिवो। So derivative of u is 1 into x square plus 1 minus derivative of this केते आसी जिवो x into derivative of this 2x divided by x square plus 1 रो whole square this equal to x square plus 1 minus 2x square divided by x square plus 1 whole square which is equal to एक्स स्क्वायर रू दुईटा एक्स स्क्वायर काटी देले यह आसीज 1 1 एज इट इज आउ आसीज ना माइनस एक्स स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ वी पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज दिस अमाउंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बिकज ये डिवाइड कर इे गले मल्टीप्लाए 0 सहित जहाँ भी मल्टीप्लाए आसे ता 0 ही हुए दैट्स वाई ये आम लिखिपर दिस इज 1 स्क्वायर। सो आम लिखिपर 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 बिकज आम जानू गोटे रिजल्ट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू केते हुए ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुए ये रिजल्ट आम ये यूज कलु। सो ये आम लिखिपर दिस इम्प्लाइज एक्स वैल्यू आसीगला आम पाखे गोटे -1 आ गोटे 1। सो दिस टू आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। एबे आम यहाँ ड्र करवा नंबर लाइन रे लेट्स से दिस इज आवर -1 एंड दिस इज आवर 0.1। एबे यही क्रिटिकल पॉइंट तीनोटी इंटरवल रे डिवाइड करिछि क्लियरली आम देखुछु गोटे है फ्रॉम -1 टू -infinity that is intervals are let me erase इंटरवल है फर्स्ट इंटरवल है -1 टू -infinity। सेकेंड इंटरवल है 1 टू -1 दैट इज -1 1 आ गोटे इंटरवल आसला ना केते 1 टू इनफिनिटी। एबे आमे चेक करबा एही जो फंक्शन दिया जाइछि या इंक्रीज करिवो ना डिक्रीज करिवो एही तीनोटी इंटरवल रे ताहा आमे क्वेश्चन रे दिया जाइछि फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। आम जानू एफ डैश एक्सटा जदि पॉजिटिव आसे तार अर्थ से इंक्रीजिंग आउ एफ डैश एक्सटा जदि नेगेटिव आसे ता कहबा आमे डिक्रीजिंग फंक्शन। सो आम यही इंटरवल ता सब आम चेक करवा। सो फर्स्ट इंटरवल आम जिते देखा लेट से आम चूज कलु पॉइंट -1 टू -infinity अच्छे
तार तो आम जहाँ भी पॉइंट जगह चूज कर -2 -3 -4 जहाँ भी आम चूज कर लेट से आम नहीं गलु ना x इक्वल टू -2 आम यही पॉइंट गोटे लेट से आम x इक्वल टू -2 चूज कलु यही इंटरवल रे सो ये एफ डैश एक्स के आसीज ना ये आसीज आम के दिखाई एफ डैश एक्स दैट इज आवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर सो ये पॉइंट आसीज ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस -2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर that is 2 square plus 1 that is 5 square is 25 so यहाँ से जो 1 minus 4 that is negative so हमें क्लियरली देखु कि -1 टू माइनस इनफिनिटी एफ डैश एक्स नेगेटिव आसूची यही इंटरवल रे दैट्स वाई आम यहाँ कहवा यही इंटरवल रे फंक्शनटा डिक्रीज करुँची फंक्शनटा डिक्रीजिंग रे अच्छी ठीक से हीपरी आम 1 टू इनफिनिटी इंटरवल भी चेक करें लेट से ये जगह गोटे पॉइंट कंसीडर कलु जहाँ भी लेट से 1 2 3 जहाँ भी आम नहीं पार सो लेट से नहीं गलु पॉइंट 2 जब आम पॉइंट 2 कंसीडर करवा सो एफ डैश एक्स के आसो एफ डैश एक्स जिते 2 पॉइंट पुट करवा से यहाँ भी आसीज ना नेगेटिव ऑब्वियसली आसो सो ये नेगेटिव ही आसो दैट्स व्हाई इट इज डिक्रीजिंग from interval 1 to infinity it is f dash x is negative that's why it is decreasing now last interval is from -1 to 1 ए इंटरवल रे कौन हम फंक्शन टा लेट से आम जगह गोटे पॉइंट कंसीडर कलु 1/2 सो ए जगह के आसो ना सब बेले यह एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही आसो दैट्स व्हाई जिते पॉजिटिव आसे कहवा आम इंक्रीजिंग फंक्शन सो लेट मी इरेज एंड रिपीट इट अगेन प्रथमे तो आम बाहर करला तीनोटी क्रिटिकल पॉइंट प्रथमे आम बाहर करला क्रिटिकल पॉइंट्स दिज आर -1 एंड 1 ताको आम नंबर लाइन रे ड्र कलु गोटे है -1 आ गोटे है 1 ये जगह आमको मिलला तीनोटी इंटरवल गोटे है आमर -इनफिनिटी टू -1 आ गोटे इंटरवल है फ्रॉम -1 टू 1 आ गोटे इंटरवल है 1 टू इनफिनिटी देखलु कि जगह नेगेटिव आसला ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव एफ डैश एक्स सो जिते नेगेटिव आसे ताको आम डिक्रीजिंग कहूँ आउ जिते पॉजिटिव आसे इनक्रीजिंग कहूँ जिते नेगेटिव आसे डिक्रीजिंग कहूँ सो these are the intervals where the function increases and decreases. I hope this example is clear. Moving on to the next topic, that is first derivative test for an extremum.